Good morning students. I am Aradhna and I am here with the video on the topic named mixers. This video contains types of mixers which are explained in detail. And if you like my video and understand something from my videos, then please subscribe my channel Aradhna's tutorial classes, and please do the comment if you have any problem related to the topic. So first of all, we should know what are mixers, and for that we have to know what is mixing, because mixers are the machines which do mixing. Mixing is obviously a unit operation that involves conversion of heterogeneous physical system to make it more homogeneous. Physical system दो types के होते हैं. First one is homogeneous system and the second one is heterogeneous system. If the properties are same everywhere, then we can say it is a homogeneous system, and if the properties are not same everywhere, different everywhere, then we can say it is a heterogeneous system. So mixing is the reduction of heterogeneousness or inhomogeneity in order to achieve a desired process result, and that desired process result is to get a homogeneous system. Our objective is to get a homogeneous system. This inhomogeneity or heterogeneousness can be in any form, like it can be one of concentration. Concentration is not same everywhere, or inhomogeneity of phase is not same everywhere, or temperature, the temperature is not maintained same everywhere. So if the temperature is not maintained same everywhere, then there will be heat transfer. If the concentration is not same everywhere, then the mixing is called mass transfer. What constitutes a mixing problem? Means why mixing is required. Okay, so before starting any project, before starting any process, we have given some objectives, like what should be the product yield, what should be its quality, or what should be its physical attributes, or what should be the cost of the product. So if the mixing is not correct, or we can say if the mixing is fails to produce the required product yield or quality or physical attributes, so the cost of manufacturing, it may be increased significantly. The cost will be increased significantly, and because the cost is increased, and to correct all these things like product yield, quality and physical attributes, the time will be increased, and because this cost and time, the marketing of the product will be delayed or maybe even cancelled. So because of these reasons, the mixing is a very essential operation in any industry. किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट हीट इतनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, या प्रोडक्ट फिजिकली ऐसा दिखना चाहिए. अगर ये सब ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है दैट इज़ सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड, और यही फाइनली हमारा मोटिव है. पर अगर ऐसा नहीं होता, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो हेट्रोजीनियस है और होमोजीनियस नहीं है, सेम नहीं है एवरीवेयर, तो अब प्रॉब्लम हो गया. इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस और करना पड़ेंगे, जिस वजह से कॉस्ट बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की, और इस वजह से क्योंकि और प्रोसेस करने पड़े, इस वजह से टाइम भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा, और इस वजह से हो सकता है जो हमें मार्केटिंग असाइनमेंट दिया गया हो उस प्रोडक्ट का वो कैंसिल हो जाए या फिर डिले हो जाए, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ रही है और टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है. इतनी देर में जो है कोई कहीं और से ऑर्डर करके कहीं और से परचेस कर लेगा. तो इस वजह से मिक्सिंग बहुत एसेंशियल है. प्रोडक्ट के बनने से पहले ही अगर हम मिक्सिंग कर लेते तो हमें होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता, और यही रिक्वायरमेंट है एक मिक्सिंग प्रोसेस की. मिक्सर्स फॉर फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स. मिक्सर्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, like for suspended solids and for heavy solids, but here I am talking about mixers for free flowing solids.
चिप मिक्सर्स की मैं बात कर रही हूँ, दे हैंडल ड्राई पाउडर्स एंड समटाइम्स थिन पेस्ट। These type of mixers are of two types. First are ribbon blenders and the other ones are tumbling mixers. And these tumbling mixers are again of two types, double cone mixer and twin shell blender. बात करते हैं रिबन ब्लेंडर्स की। रिबन ब्लेंडर्स में जो मिक्सिंग होती है वो मैकेनिकल शफलिंग के थ्रू होती है, यानी मूवमेंट रहता है उसमें मैकेनिकली। और जो टम्बलिंग मिक्सर्स होते हैं उसमें जो मिक्सिंग होती है वो टम्बलिंग के थ्रू होती है। टम्बलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, तो यानी कि बाय रेपिटेडली लिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग द मटेरियल एंड रोलिंग इट ओवर। इन बॉल मिल्स देयर आर बॉल्स बट इन टम्बलिंग मिल्स देयर आर नो बॉल्स। बॉल मिल्स में बॉल होती हैं जो रोल ओवर होती हैं, पर टम्बलिंग मिल्स में बॉल्स नहीं होती हैं। जो मटेरियल मिक्सिंग के लिए अवेलेबल है वो अपने आप में ही टम्बलिंग करता है, अपने आप में ही रोल ओवर होता है, अपने आप में ही ड्रॉप और लिफ्ट होता है। रिबन ब्लेंडर्स, so as shown in figure, a ribbon blender consists of a horizontal ट्रफ आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट एक चौड़ा और खुला बर्तन, जैसा कि वो जिसमें गाय और भैंसें चारा खाती हैं, कंटेनिंग अ सेंट्रल शेफ्ट, बीच में आपको एक डंडे जैसी शेप नज़र आ रही होगी, दैट इज सेंट्रल शेफ्ट, एंड अ हेलिकल रिबन एजिटेटर। अराउंड द शेफ्ट आपको एक हेलिकल शेप यानी घुमावदार शेप नज़र आ रही होगी, दैट इज अ हेलिकल रिबन एजिटेटर एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू काउंटर एक्टिंग रिबन्स माउंटेड ऑन द सेम शेफ्ट। दो रिबन्स हैं काउंटर एक्टिंग यानी कि काउंटर डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं और सेम शेफ्ट पे माउंटेड हैं। एक सॉलिड्स को दूसरे की डायरेक्शन में स्लोली मूव कर रही है और दूसरा उन्हीं सॉलिड्स को पहले की डायरेक्शन में क्विकली मूव कर रही है। ये रिबन्स कॉन्टिन्यूस भी हो सकती हैं और बीच बीच में गैप भी हो सकता है, दैट मीन्स इंटरप्टेड भी हो सकती हैं। अच्छा, जो मिक्सिंग है दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ सॉलिड्स थ्रू द ट्रफ। ये सिर्फ सॉलिड्स के मोशन की वजह से नहीं होती, मिक्सिंग सॉलिड के मोशन की वजह से जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है यानी कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है काउंटर एक्टिंग एजिटेटर्स या फिर काउंटर एक्टिंग रिबन्स के थ्रू, उसकी वजह से मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग इज बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस इंड्यूस्ड बाय द काउंटर एक्टिंग एजिटेटर्स। सम रिबन ब्लेंडर्स आर बैच वाइज एंड अदर्स आर कॉन्टिन्यूस। कुछ रिबन ब्लेंडर्स बैच वाइज भी वर्क करते हैं, कुछ कॉन्टिन्यूसली भी वर्क करते हैं। अगर जो ऑपरेशन हो रहा है मिक्सर में वो अंडर प्रेशर या वैक्यूम के अंडर हो रहा है तो जो लिड है ट्रफ की वो क्लोज होनी चाहिए और हैवीली क्लोज होनी चाहिए कि खुल ना पाए ऑपरेशन के बीच में। और अगर लाइट ड्यूटी के लिए है, प्रेशर नहीं है, देन ट्रफ खुला भी रह सकता है और लाइटली कवर्ड भी रह सकता है। रिबन ब्लेंडर्स आर इफेक्टिव मिक्सर्स फॉर थिन प्लेट्स एंड फॉर पाउडर्स दैट डू नॉट फ्लो रेडिली। रिबन ब्लेंडर्स थिन पेस्ट या फिर ऐसे पाउडर्स के लिए इफेक्टिव हैं जो कि जल्दी मूव या फ्लो नहीं करते हैं। टम्बलिंग मिक्सर्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाय ड्रॉपिंग एंड लिफ्टिंग अप द मटेरियल एंड बाय रोलिंग ऑल ओवर जो मिक्सिंग होती है दैट इज डन बाय टम्बलिंग मिक्सर्स। मैनी मटेरियल्स आर मिक्स बाय टम्बलिंग दैम। टम्बलिंग का मतलब होता है लुढ़कना पुढ़कना। Many materials are mixed by tumbling them in a partly filled container rotating about a horizontal axis. The most important thing is जो कंटेनर है जिसमें मटेरियल है वो पार्टली फिल्ड होना चाहिए, क्योंकि पार्टली फिल्ड होगा तभी जो मटेरियल है वो लिफ्ट अप ड्रॉप डाउन और रोल ओवर हो पाएगा, टम्बल हो पाएगा। उसके लिए जो कंटेनर है दैट शुड बी पार्टली फिल्ड। They resemble ball mills without the balls, as I told you before, and they are of two types, double cone mixer and twin shell blender. Double cone mixers. The double cone mixer shown in the present figure is a popular mixer for free flowing dry powders. A batch is charged into the body of the machine from above until it is 50 to 60% full. एक बैच बॉडी में मशीन की बॉडी में चार्ज किया जाता है ऊपर से जब तक कि 50 to 60% फुल नहीं हो जाती। पार्टली फिल होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था। द एंड्स ऑफ द कंटेनर आर क्लोज्ड एंड द सॉलिड्स आर टम्बल्ड फॉर 5 to 20 minutes.
कंटेनर के एंड्स को क्लोज कर दिया जाता है और सॉलिड्स टम्बल होते हैं, यानी कि सॉलिड्स को लुढ़कने पुढ़कने के लिए छोड़ दिया जाता है फॉर 5 to 20 मिनट्स। And after this time the machine is stopped. Mixed material is dropped out the bottom of the container into a conveyor or bin. कन्वेयर से जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और बिन में जो मटेरियल है उसको स्टोर कर लिया जाता है। Twin shell blender. So as shown in figure 3, it is in a V shape. And how this V shape is created? It is created by joining two cylinders, and then V shape is formed and then it is rotated about a horizontal axis. दो सिलेंडर्स को ज्वाइन करके V शेप फॉर्म की जाती है और उसके बाद ये V शेप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। डबल कोन ब्लेंडर और ट्विन शेल ब्लेंडर में एक अरेंजमेंट और होता है, दो अरेंजमेंट और होते हैं। एक तो इंटरनल स्पेस का, अगर लिक्विड को स्मॉल अमाउंट्स में इंट्रोड्यूस करना है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड into the mixture there are internal space। और अगर बड़े बड़े सॉलिड्स एग्लोमरेट्स हैं, जब छोटे छोटे सॉलिड्स मिलके बड़ा सॉलिड बना लेते हैं तो वो सॉलिड एग्लोमरेट्स कहलाते हैं। तो उनको ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए मैकेनिकली ड्रिवन डिवाइसेस का अरेंजमेंट रहता है। दो अरेंजमेंट रहते हैं, एक इंटरनल स्पेस का और दूसरा मैकेनिकली ड्रिवन डिवाइसेस का। Tumbling mixers are made in a wide range of sizes and material of construction। टम्बलिंग मिक्सर्स बहुत सारे साइजेस में बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे मटेरियल से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अलग अलग तरीके के मटेरियल से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और फ़ायदा ये है इनको यूज़ करने का कि ये अगर हम कंपैरिजन करें रिबन ब्लेंडर से तो ये थोड़ा कम पावर यूज़ करते हैं। Good luck and thank you. And my next video will be on the topic of fluidization. A little introduction to fluidization will be there. And if you understand something from this video, then please like this video and do comment below. And if there is any query regarding to this video, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं मुझसे बनवाना, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।